Hello guys, welcome to all of you. I will explain today about kinetics of anionic polymerization. I have already explained about the thermodynamics of anionic polymerization in our previous videos. So today I will explain about this. First of all, I will see about the reaction set. Suppose that there are a category of reactions that is given by Ga is converted into G plus and A radical. Suppose that Ga is some type of a molecule which is disintegrate into cation and radical. This is the initiation step. What happens in this step? Our cation after that binded the metal atom. We can say that this is not a metal, this is one type of monomer is first of all bonded with the our radical ion, that is called A, and there is formation of Am minus and G plus. Note that the nature of the solvent will determine whether the propagating anion behaves as a free ions Am minus, as a loose or tight ion pair Am minus G plus are both. We will assume free ions for this treatment. So here we see that the rate of reaction mainly depends upon the anionic part. This is the anionic parts, and so after in propagation step, what happens there? Am minus again condensed with the monomer to form Am minus, and this Am minus condensed to form Am2 minus and Am3 minus, Am4 minus, and so on. The final equation is given as Amn minus 1 M minus plus M is equal to Amn M minus. This is the propagation step of this anionic reactions. So here we see that there is no any termination step in the absence of impurities has been seen in these reactions. So this is all the criteria about the kinetics of anion. In the second one, the rate of polymerization. So here experimental expressions has been given, that is represented by Rp, rate of polymerization, is equal to minus d concentration of M upon dt is equal to Kp A minus M. This is the kinetics of that above reactions which are explained above. Here you see that the concentration rate of reaction depends upon the concentration of monomer, and this is inversely to the time taken. So A minus total concentration of anions of all lengths, Ga not is equal to concentration of initiator before dissociation. So this reaction can also be integrated in the following way: Rp is equal to minus d concentration of M upon dt is equal to Kp concentration of Ga and concentration of M. So integrating these expressions, I will get concentration of M is equal to concentration of M naught experience minus Kp concentration of Ga naught T. So this is the kinetics of anion polymerization. Now the next topic is the solid state properties. तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा पॉलीमर है उसकी सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टी कैसे एग्जिस्ट होती है. बहुत ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, उनकी क्रिस्टलिटी देखी जाती है. बहुत ऐसे पॉलीमर हैं जो एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं. तो आइए इसमें देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ इट्स प्रॉपर्टी. तो पॉलीमर इन द सॉलिड स्टेट. तो अगर सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है कि
सॉलिड स्टेट में पॉलीमर दो तरह का होता है, एक सेमी क्रिस्टलाइन होता है, एक एमार्फस होता है। एमार्फस जो है ये दो फॉर्म में होता है, एक ग्लासी एक रबरी, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम फॉर्म में होते हैं। ग्लासी एंड रबरी दोनों लगभग सुपर कूल्ड लिक्विड टाइप का होता है, और इसका स्ट्रक्चर्स कुछ आप देख सकते हैं कि जो सेमी क्रिस्टलाइन है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है, और जो रबरी या ग्लॉसी है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है। इसमें जो है कॉन्टीन्यूअस अटैचमेंट ऑफ मोनोमर्स आर नॉट सीन इन हियर, यहाँ नहीं देखा जा सकता, जबकि इस केस में आपके सेमी क्रिस्टलाइन में आप देख सकते हैं कि ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोमर अरेंज्ड इन ए रेगुलर फैशन, but here this is not arranged in a regular fashion, this is arranged in a zigzag or random fashion. So this is the rubbery or glossy state of polymer. So questions, relationship to microstructures या relationship of structure to properties. Here questions are arises that कि हमें जो रिलेशनशिप देखनी है उनकी माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बीच में देखना है, या फिर जो रिलेशनशिप देखना है स्ट्रक्चर टू प्रॉपर्टीज़ या स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले एक टेम्परेचर आता है जिसे हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, या GTT कहा जाता है, जिसे कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसे TG, इनिशियली इट इज़ डिनोटेड बाय TG, इस टेम्परेचर, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है बिलो विच अ पॉलीमर or glass is brittle or glass like, above that temperature the material is more plastic। यानी जो ग्लास हमारा होता है बिलो विच पॉलीमर और ग्लास इज ब्रिटल, इसके नीचे ये ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, वो टूट सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक टाइप मटेरियल ये डिनोट किया जाता है। The transition temperature, glass transition temperature to a first approximation is a measure of the strength of the secondary bonds between chain in a polymer. The stronger the secondary bonds, the higher the glass transition temperature। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो एक तरह से वो सेकेंडरी बॉन्ड से जो है एसोसिएटेड होता है, और इसकी जो स्ट्रेंथनिंग होती है वो सेकेंडरी बॉन्ड को डिनोट करती है, और उसमें ये देखा जाता है दिस जितना ही ज़्यादा ये सेकेंडरी बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है हायर होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक दिखाया गया है, यहाँ देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाया गया है, ये क्रिस्टलाइन स्टेट है यहाँ पर आप इस स्टेज पर, और फाइनली यहाँ पर लिक्विड स्टेट, ये ग्लास स्टेट है आपका। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जैसे ये TG है TM है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर अ पॉलीमर दैट इज़ कॉल्ड पॉलीएथिलीन, जिसके लिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉलीस्टाइरीन के लिए 97 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्लेक्सिग्लास के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंस रूम टेम्परेचर इज़ लेस दैन ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर PMM में, इट इज़ ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। फॉर रबर बैंड्स के लिए -73 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो टू मेक रबर ब्रिटल यू नीड टू कूल इट। हैड द चैलेंजर टेकन ऑफ ऑन ए वार्म डे द डाइस्टर में नेवर हैव हैपेंड। इट मीन्स यानी जो ग्लास प्रिपेयर होता है एक तरह से देखा जाए तो इसे डायरेक्ट ठंडा नहीं किया जाता, इसे जिसे हम एनलिंग प्रोसेस के थ्रू कूल करते हैं, यानी धीरे 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 इसे जो है ठंडा किया जाता है, जिसे एनालाइजेशंस भी कहा जाता है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं या कुछ हेड्स दिए गए हैं जिसके थ्रू ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का डिटर्मिनेशन किया जाता है, जिसमें डायनेमिक मैकेनिकल टेस्ट होता है और टॉर्सन पेंडुलम्स के थ्रू एक टेस्ट होता है, टेंसाइल और फ्लेक्सरल वाइब्रेशंस वर्सेस टेम्परेचर के थ्रू जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, टॉर्सन ब्रैड के थ्रू किया जाता है, डायलेटोमेट्री जो DSC, डाइलेक्ट्रिक लॉस, बाउंसिंग बॉल, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू
जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो व्हाट हैपेंस इन द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ब्रेक डाउन ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस। इसमें होता क्या है, जो वंडर वॉल फोर्सेस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑन सेट ऑफ लार्ज स्केल मॉलिक्यूलर मोशंस, पॉलीमर गोज फ्रॉम ग्लासी रिजिड टू रबरी बिहेवियर। जो पॉलीमर होता है ग्लासी फॉर्म में होता है वो चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म, एक तरह से कहें तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। रबर एक हमारा लिक्विड मटेरियल मेंटेन करता है। अपर सर्विसेज टेम्परेचर इन मॉर्फस पॉलीमर्स, ऑल दिस इज द कैरेक्टर्स ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स। व्हाट हैपन इन द मॉलिकुलर फैक्टर्स एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, द फ्री वॉल्यूम, बैकबोन, स्टिफनेस, स्टेरिक इफेक्ट, साइड ग्रुप्स जो होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर्स जो इसको थर्मोसेट्स होते हैं, एनीथिंग विच मेक्स मूवमेंट मोर डिफिकल्ट विल इंक्रीजेस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ये सब मॉलिक्यूलर फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करती हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को। और since one of the free volume, backbone, stiffness, steric effect, side group, etc., all these properties are affecting the nature of glass transition temperature. Now here come the properties of polymer, that is the glass transition temperature, which are represented in this way. Here you see that कि यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ 5 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और इसमें से आप देख सकते हैं कि हियर आर सम ग्राफ्स आर हियर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इनके अकॉर्डिंग्स जो है किस तरह से पॉलीमर का जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है चेंज हो रही है। And what factors that affected the glass transition temperature, the effect of chemical structure, flexible side groups, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो इनिशियली द ग्लास ट्रांजिशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग चेन लेंथ, यानी जब चेन लेंथ जो है इंक्रीज करती है तो ग्लास ट्रांजिशन जो है वो डिक्रीज करता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोजेड टू द चेन, द मिथाइल एंड एस्टर ग्रुप्स प्रोवाइड द बल्क ऑफ द स्टेरिक हिंडेंस, उनके बीच में स्टेरिक हिंडेंस बहुत ज़्यादा होता है। द रेस्ट ऑफ द अटैच्ड साइड चेन कैन गेट आउट ऑफ द वे ऑफ मोशन ऑफ द मेन चेन थ्रू रोटेशन अराउंड साइड चेन बॉन्ड्स, बिकॉज दिस साइड चेन increases the free volume through their effect on the packaging of the chains, the glass transition is lowered. So there are some polymers which are given here and their glass transition temperatures are also given, that is the polybutyl methyl acrylate, this having the glass transition temperature -2 degrees centigrade. Here polyoctyl methyl acrylate that has the glass transition temperature -42 degrees centigrade, and here polydecadoyl methacrylate, polydodecyl methacrylate, this having the glass transition temperature -62 degrees centigrade. So here you see that their glass transition temperature are gradually decreases. The effect of chemical structure chain stiffness, what is the effect of this glass transition temperature on the stiffness of the chains? So इस तरह से देखा जाए तो जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस होता है should have a higher glass transition temperatures, but the explained to electron glass transition temperature, the effect on glass transition temperature, we will use arguments based on free volume and molecular mobility. So these two factors which mostly affected the stiffness, this one is the free volume and other is the मॉलिकुलर मोबिलिटी। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़्यादातर जो है उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो चेन स्टिफनेस
अफेक्ट्स चेन मोबिलिटी, यानी चेन जितनी ज़्यादा ही मजबूत होती है, यानी स्टिफनेस उसमें ज़्यादा, स्ट्रांगनेस होती है, उतनी ज़्यादा मोबिलिटी उसमें नहीं हो पाती। वो जैसे ग्लास देखिए और रबर देखिए, तो रबर की जो स्टिफनेस है वो थोड़ी वीक होती है, ग्लास की स्टिफनेस हाई होती है, इसलिए जो रबर में मूवमेंट जो है ज़्यादा पाया जाता है। इफ़ दीज आर बल्की ग्रुप्स सच एज बेंजीन रिंग इन द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर चेन, देयर इज हाई एनर्जी बैरियर टू रोटेशन विच देन ओनली अकर एट हायर टेम्परेचर। इसका मतलब जैसे हमारे पॉलीमर हैं, अगर वो बेंजीन चेन के थ्रू बने हुए हैं उनके टर्मिनल पोजीशंस पे, तो यहाँ पर बहुत हाई बैरियर हो जाएगा रोटेशंस के लिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना हो जाएगा। तो ये जो है उस चेन को स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण उसमें मोबिलिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन है, पॉलीएथिलीन है और पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड है। ये कुछ पॉलीमर्स यहाँ पर दिए गए हैं और उनके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स भी -120 डिग्री सेंटीग्रेड और -80 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हियर यू सी दैट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन. So that affect the glass transition temperature. There one is the intramolecular attraction, एक क्रॉस लिंकिंग भी होता है जो ज़्यादा अफेक्टेड करता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को, कि जितना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा, क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होने से बाइंडेशन जो होता है वो मोनोमर का एक दूसरे से वो ज़्यादा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, जिसके कारण मोबिलिटी समवाट उसकी जो है वीक हो जाती है और वहाँ पे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हाई हो जाता है। जैसे क्लोरीन एटम एंड मिथाइल ग्रुप है अप्रॉक्सीमेटली द सेम इफेक्ट ऑन बॉन्ड रोटेशंस। से कुछ यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए एक हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है और एक पॉलीमिथाइल क्लोराइड है, एक पॉलीप्रोपिलीन है और एक पॉलीविनाइल क्लोराइड है। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ CH3 ग्रुप है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके लिए आप देख सकते हैं दिस इज़ नियर अबाउट -87 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए और कम हो जाता है। तो ऐसा रीज़न बताया गया है कि क्लोरीन एटम और मिथाइल ग्रुप दोनों की जो है जो बॉन्ड रोटेशंस का इफेक्ट होता है वो लगभग सेम होता है। The polar character of the chlorine atom leads to stronger force of attraction between chain, however, which means that on average those groups engaging in such interactions are closer together. यानी जो क्लोरीन एटम जो इस पॉलीमर से जुड़ा हुआ है एज ए सब्सटीट्यूएंट के फॉर्म में, साइड फॉर्म में, तो इनकी पोलरिटी जो इफेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है बिटवीन द चेन। द फ्री वॉल्यूम इज लेस एंड द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज हायर। रियली जो रियलिटी इज प्रोबेबली अ बिट more complicated than this, but this simple explanation gives a good feel for the major effect. Now I will come the next one. Here you see that a graph shows that their stiffness and their mobility. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होता जाता है, मोबिलिटी आप दोनों देख सकते हैं, स्टिफनेस एंड मोबिलिटी बोथ आर रिप्रेजेंटेड हियर. That shows by the relationship between the free volume of the mixtures and which is represented by 1 upon Tg is equal to W1 upon Tg1 plus W2 upon Tg2. This is the weight that is represented. तो the ends of chain है more freedom of motion. जितना ज़्यादा फ्रीडम होगा, जितना ज़्यादा चेन में जो बल्कि ग्रुप्स होगा जितना ही कम होगा, एक तरह से देखा जाए तो उसमें जो है मोशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ही ज़्यादा मोशन होगा देन द सेगमेंट्स इन द सेंटर ऑफ द चेन एंड क्रूडली कैन बी थॉट अप एज हैविंग मोर फ्री वॉल्यूम्स. जितना ज़्यादा जो है फ्रीडम टर्मिनल पोजीशंस पर होगा या फिर सेगमेंट में होगा यानी बीच में होगा, उतना ज़्यादा देखा जाता है कि उनका वॉल्यूम जो है फ्री होता है. लो मॉलिक्यूलर वेट चेन्स है मोर इन
per unit volume than long chains. Hence a higher free volume, hence lower transition glass transition temperature. तो जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये फ्री वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है. जैसे फॉक्स एंड फ्लोरी यूज्ड सच सिंपल फ्री वॉल्यूम arguments to obtain the following equation. Here you see that this is glass transition temperature is equal to glass transition temperature kappa upon mn bar. Here mn bar that indicates the number average molecular weight of polymer, and k is the constant related to the parameters which is describing the free volume. And here you see that the Tg is the glass transition temperature that would be obtained from a polymer of infinite molecular weight. Infinite molecular weight. So the next one is the crystallinity. अगला जो कैरेक्टर्स है पॉलीमर का वो होता है क्रिस्टलिनिटी, यानी कौन कौन से फैक्टर क्रिस्टलिनिटी को प्रभावित करते हैं, यानी क्रिस्टल्स जो मोनोमर्स अटैच्ड होता है उस पॉलीमर में उसको जो है प्रभावित करते हैं. तो जिसे क्रिस्टलाइजेशन इन लीनियर पॉलीमर्स इन्वॉल्व द फोल्डिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ द लॉन्ग चेन अपॉन देमसेल्व्स टू अचीव ए वेरी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द मर्स. क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स जो होते हैं इसमें मेनली क्या क्या है, इनका स्टीरियो रेगुलरिटी देखी जाती है, लीनियरिटी देखी जाती है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शन देखा जाता है. मेन जो है क्रिस्टलाइट्स जो होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन एंड ऑर्डर्ड माइक्रोडोमेन्स फ्रिंज्ड माइसेल्स होते हैं. तो इंडक्शन ऑफ क्रिस्टलिनिटी जिसे कूलिंग ऑफ मोल्टेन पॉलीमर, इवोपोरेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन, एनिलिंग, दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्रोसेस जिसे हमने आपको बताया एनिलिंग. हीटिंग ऑफ ए पॉलीमर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी इसमें डायरेक्ट उसे कूल नहीं किया जाता, इस पर हीट किया जाता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जो भी ग्लास टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे थे. ड्रॉइंग, स्टिचिंग एट ए टेम्परेचर एबव Tg, बिलो Tg एनिलिंग होती है, एबव Tg ड्रॉइंग होती है. ये दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी के लिए. Here you see that there are different shapes of crystalline regions, or we can say that the जैसे a plate like, जो प्लेटलेट लाइक होते हैं स्ट्रक्चर 100 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं. फोल्डेड चेन लैमेला मॉडल्स होते हैं. सेकंड वन एक्सटेंडेड चेन क्रिस्टल्स होते हैं, लेस कॉमन एंड ऑफन टेक निडल फॉर्म, यूजुअली फॉर्म विथ लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर बाई slow crystallization or under pressure. न्यूक्लिएशंस जो ऑनसेट ऑफ क्रिस्टलिनिटी होती है, होमोजीनियस न्यूक्लिएशंस occur randomly throughout the matrix. Heterogeneous nucleations occur at the interface of foreign impurities, finite divided silica. जैसे finite divided silica जो होती है इसके जो इंटरफेसेस होते हैं कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर होती हैं उनमें पाई जाती हैं, और ये इसी को जो है एक्सप्लेन करता है. सो ऑल दीज आर रिलेटेड विद द फीचर्स ऑफ क्रिस्टलिनिटी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलीमर्स. नेक्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन मॉर्फोलॉजीज. जैसे स्फेराइट एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल फिब्रिल्स इन ए रेडियल पैटर्न क्रिस्टलाइजेशन अंडर नो स्ट्रेस, यानी कुछ मॉर्फोलॉजीज़ हैं क्रिस्टल्स के. ड्रॉन फैब्रियर ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग द स्पिरुलेटिक फिब्रिल्स, epitaxials, one crystalline grown on another lamella growth on long fabrics, the so called shish kebab morphology. Shish kebab morphology, this is the, here you see that C, structure C is the shish kebab morphology. And crystallization under stirring, here you see that A, B, C, three structures are given, and these are related with the morphology of crystals. The crystalline polymers versus amorphous polymers, यानी जो मेन फीचर्स होते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स के और एमॉर्फस पॉलीमर्स के.
उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कुछ फीचर्स जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या मैच करते हैं। ऑल दीज कैरेक्टर्स आर एक्सप्लेन्ड हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if we look about the strongness of the polymer, strength of the polymer, the crystalline forms जो polymer होता है वो tougher stiffer होता है due to stronger interactions। यानी जो crystals polymer होते हैं वो काफ़ी strong होते हैं rather than amorphous। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, यानी जो मोनोमर्स होता है वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज रहता है, जिसके कारण उनकी डेंसिटी हाई होती है क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की। जो हायर सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होते हैं ड्यू टू क्लोज पैकिंग मॉर्फोलॉजी, इनकी क्लोज्ड पैकिंग मॉर्फोलॉजी होती है, जिसके कारण ये जो है रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ इसमें डेवलप हो जाती है। मोर ओपेक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओपेक होते हैं जिसमें क्रिस्टलाइन पॉलीमर ड्यू टू लाइट स्कैटरिंग बाई क्रिस्टलाइट्स। डिटेक्शन ऑफ क्रिस्टलिनिटी डिग्री, तो किस तरह से कौन कौन से टेक्निक के थ्रू हम जो है डिटेक्ट करते हैं, तो कौन किस किस प्रोसेस के थ्रू, जैसे इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस के थ्रू, डेंसिटी एक्सआरडी के थ्रू, थर्मल एनालिसिस जैसे आईआर के थ्रू, बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिसके थ्रू क्रिस्टलिनिटी जो है वो डिटेक्ट की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रिस्टलिनिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्रिस्टलिनिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे बैकबोन स्टिफनेस, यानी जो बैकबोन स्टिफनेस होती है, जो बैकबोन का मतलब जो मेन चेन होती है, कार्बन चेन होती है, उसकी स्टिफनेस देखी जाती है कि वो मच मोर है या लेस है। बैकबोन सिमेट्री देखी जाती है। एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस, यानी ब्रांचिंग देखी जाती है कि पॉलीमर में अगर ज़्यादा ब्रांचेस ज़्यादा हैं एक तरह से देखा जाए तो, जिसको हम कह सकते हैं कि नेटवर्किंग जैसे ज़्यादा है, अगर उनके बीच में 3D नेटवर्क ज़्यादा है, एक दूसरे से लिंकिंग ज़्यादा है, तो एक तरह से स्टिफनेस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेंडेंट ग्रुप साइज देखी जाती है, पेंडेंट ग्रुप पोलरिटी देखी जाती है, पेंडेंट ग्रुप रेगुलरिटी देखी। ऑल दीज फैक्टर्स विच अफेक्ट दी क्रिस्टलिनिटी, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्रिस्टलिनिटी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद ए नंबर ऑफ फैक्टर डिटरमाइन द कैपेसिटी एंड और टेंडेंसी ऑफ पॉलीमर टू फॉर्म क्रिस्टलाइन रीजन विद इन द मटेरियल, यानी बहुत सारे इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि एक कैपेसिटी या टेंडेंसी जो है पॉलीमर की फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन रीजन फॉर्म करने की जो होती है। जैसे एज ए जनरल रूल के थ्रू देखा जाए तो ओनली लीनियर पॉलीमर्स कैन फॉर्म क्रिस्टल्स। एक जो बेसिक रूल्स है कि वो लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि जो ब्रॉन्ज पॉलीमर होते हैं उनके बीच में ब्रांचिंग के कारण बीच में देयर इज़ ए होल फॉर्मेशन हो जाता है, होल, इसको हम क्रिस्टल होल कहते हैं। और इसीलिए जो है उनकी जो स्टीरियो रेगुलरिटी होती है बहुत क्रिटिकल हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। कोपॉलीमर जो होते हैं ड्यू टू दियर मॉलिक्यूलर इरेगुलरिटी रेयरली फॉर्म क्रिस्टल्स, यानी जो होमोपॉलीमर होता है ज़्यादातर जो है क्रिस्टल फॉर्म करता है। कोपॉलीमर ये उतना ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्मेशंस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कोपॉलीमर में जो कंडेंसेशन होता है बिटवीन टू डिफरेंट मोनोमर के बीच में, उसमें इरेगुलरिटीज़ होती है, इरेगुलरिटीज़ के कारण, जिसके कारण दे डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल बिकॉज दे आर समवॉट एटैक्टिक टाइप के हो जाते। स्लोअर कूलिंग प्रमोट्स क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। जितना ही स्लोअर कूलिंग होगा क्रिस्टल फॉर्मेशन उतना ही। तो जैसे ग्लासेस आप देखिए तो ग्लास की जब कूलिंग होती है, जब ग्लास प्रिपेयर होता है, इसकी जब कूलिंग होती है एनलिंग के थ्रू होती है, डायरेक्ट कूल इसको नहीं किया जाता है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, इसके बाद धीरे धीरे इसकी जो है कूलिंग कराई जाती है।
इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है यानी हमारे पॉलीमर चेन पर या फिर यानी हमारे क्रिस्टल पॉलीमर्स पर। इंक्रीज डेंसिटी, पहला होता है कि डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, स्टिफनेस मॉडुलस जो होता है वो बढ़ जाता है, परमेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। परमेबिलिटी, परमेबल यानी एक तरह से खींचने का जो गुण होता है उनमें वो कम हो जाता है। इंक्रीज केमिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो बढ़ जाता है। रिड्यूसेस टफनेस, टफनेस जो होती है थोड़ी सी वीक हो जाती है, टफनेस कम हो जाता है। जैसे ग्लास है लेकिन छोड़ दीजिए तभी टूट जाएगा, तो इस तरह से देखा जाए तो देयर आर सम थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सो वी हैव नॉट discuss this in detail because this is not related with our syllabus. So we come thermodynamics of glass transition temperature and general temperature of the molecule. What happened here? Here you see that the thermodynamics of Tm and Tg. So this is explained on the basis of Gibbs energy dg is equal to minus sdt plus vdp. So dg upon del g upon del p at temperature T is equal to v वॉल्यूम के इक्वल फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशंस होता है। और यहाँ पे जो Cp इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट पी एंड Cp इक्वल टू टी डेल्टा एस डेल एस अपॉन डेल टी पी सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन, ये सारे इक्वेशन जो है थर्मोडाइनमिकल इक्वेशंस हैं। ये एंट्रोपी और एंथैल्पी से रिलेटेड है और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर ये शो किया गया है। ऑल दीज आर एक्सप्लेन्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फेज, दैट इज द ट्रांजिशन फॉर लॉन्ग चेन पॉलीमर। हियर यू सी दैट टीएम सॉर्फ क्रिस्टलाइन पॉलीमर के लिए जो होता है, यहाँ टेम्परेचर और क्रिस्टलाइन पॉलीमर ग्लास, थर्मोप्लास्टिक, लिक्विड, ग्लास, रबरी, गमी और लिक्विड। तो सबसे पहले ग्लास होता है, फिर थर्मोप्लास्टिक में कन्वर्ट होता है यानी जो उसकी प्रॉपर्टीज आती है, इसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होता है जैसे जैसे टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। एमॉर्फस पॉलीमर क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। दिस कैरेक्टर सो मच इम्पोर्टेंट, यू हैव टू remember this is very important character for crystalline polymer and amorphous polymer। यानी जब हम amorphous या crystalline polymer को जब कन्वर्ट करते हैं तो किस किस स्टेज के थ्रू कैसे कैसे टेम्परेचर वो जो है इंक्रीज़ करता है और कैसे कैसे उनका स्टेज जो है वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए कि मॉलिक्यूलर टेम्परेचर यहाँ को क्रिस्टलाइन पॉलीमर का सबसे पहले ग्लास, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एमॉर्फस में क्या होता है, ग्लास, रबरी, गमी, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। दिस इज वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो डिटेक्ट द अकरेंस ऑफ ग्लास ट्रांजिशन। डायल एटोमेट्री मेजर वॉल्यूम इंक्रीजेस, कैलोरीमेट्री मेजर द एंथैल्पी चेंजेस, मैकेनिकल मेजरमेंट्स मॉडुलस एंड स्टिफनेस। ये तीन ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स को डिटेक्ट किया जाता है। तो डायलेक्ट्रोमेट्री, कैलोरीमेट्री और मैकेनिकल मेजरमेंट्स, 3 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हियर सम ग्राफ्स आर गिवन अबाउट द सेमी क्रिस्टलाइन एंड फॉर amorphous and they have the relationship between their volume, heat of formations and temperatures. So here you also see the modulus and temperature. The glossy states is generally converted into leathery and then rubbery, and here cross-linking polymer formation, and this is converted into लिक्विड और लीनियर पॉलीमर। जैसे जैसे आपने देखा कि टेम्परेचर बिलो होते चला गया वैसे वैसे इनका स्टेज जो है, क्रिस्टलिनिटी इनकी जो है वो कन्वर्ट होते चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का कि ये किस तरह से जो है क्रिस्टलिनिटी को टोटली चेंज कर देता है।
अब जैसे देखिए रियोलॉजी अगर देखा जाए, साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो, जिसको हम रियोलॉजी कहते हैं, रियोलॉजी, टू काज ए पॉलीमर टू डिफॉर्म और फ्लो। रियोलॉजी का मतलब जिसमें पॉलीमर टू डिफॉर्म या फ्लो। डिफॉर्मेशन का मतलब हुआ जैसे सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट, तो लिक्विड के पहले तो ये गम में कन्वर्ट होता है, रबरी में कन्वर्ट होता है, यानी इसमें जो एक तरह से देखा जाए फ्लूइडिटी कैरेक्टर्स डेवलप होता है, इसी को रियोलॉजी कहा जाता है। तो इसके लिए क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू पॉलीमर में डिफॉर्मेशन या फ्लो कैरेक्टर्स डेवलप होता है। तो सबसे पहला होता है नीड फोर्स। इफ़ द फोर्स इज़ विड्रॉन क्विकली, जैसे उसकी जो फोर्सेस होती हैं चेन के बीच में, अगर उनको विड्रॉ कर लिया जाए, जिसको हम रिलैक्सेशन प्रोसेस भी कहते हैं, पॉलीमर विल रिबाउंड। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड कॉन्स्टेंटली, पॉलीमर विल फ्लो रिवर्सिबली। The flowing polymer liquid will be very viscous due to chain entanglement and frictions effects. Amorphous polymers are viscoelastic materials, combination of elasticity and viscous flow. Here you see that कि जैसे जैसे यहाँ प्रेशर दिखाया गया है उस तरह से यहाँ पे किस तरह से ये मोल्टेन पॉलीमर जो है कन्वर्ट होता है, डिस्प्लो होता है, डाई होता है, एंड सो ऑन. Now the some equations which are related with their shear strengths, shear modulus and shear rates. This is the important for tangential stress. These all has been experimentally proved. They are not derived or explained in detail. So here we will learn directly the most concerned forces type shear stress जिसे कहा जाता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर्स में tau is equal to force upon a area, or amount of deformation of one plane with respect to another, gamma is equal to x upon y, that is related with the, here is box model represented, and resistance to shear G is equal to tau upon gamma, so gamma is the shear strain, tau is equal to gy, shear rate gamma star is equal to d gamma upon dt, and velocity gradient. एन आइडल लिक्विड फ्लोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी जो आइडल जिसको हम न्यूटोनियंस कहते हैं, न्यूटोनियंस लिक्विड फ्लोज जो होता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है। जैसे टाउ इक्वल टू नीटा गामा स्टार, टाउ अपॉन नीटा इक्वल टू गामा स्टार, नीटा इक्वल टू टाउ अपॉन gamma star. So neta, here you see that this is the viscosity, a measure of resistance to flow. Neta is the measure of resistance to flow. Its unit is poise, dynes per centimeter square, और इसका जो SI सिस्टम होता है पास्कल सेकेंड्स होता है, PS पास मीन्स PA एंड S न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. So here you say that there are some viscosity has been given here for air, H2O, glycerine, molten polymer. तो एयर के लिए 10⁻⁵ पास्कल्स पर सेकेंड होता है, H2O के लिए 10⁻³ पास्कल्स, ग्लिसरीन का 1 पास्कल्स, molten polymer जो होता है नियर अबाउट. Viscosity can be related to the temperature by an Arrhenius type equations. You have neta equal to a e power minus en upon RT. So a is the related to the molecular motion and en is the activation energy for forming viscous flow. So EA can also be determined mainly by local chain segmental motion, relatively insensitive to molecular weight, highly depending on chain structure and branching. Bulker chain branch are subsequent, higher activation energy. Bulkier groups होने के नाते makes viscosity more sensitive to temperature. So according to Wingham Newtonian flows equations, or you can cook Wingham equations, tau is equal to Tc plus neta gamma, probably caused by some special type of structural arrangement arising from conformational and secondary bonding forces. So
all these characters which explain about the polymer characteristics. This is the crystalline versus amorphous. So non-Newtonian shear stress is not linearly proportional to shear state, and this also explained. Here you see that thixotropic liquid general expressions that is given by this equation, and so all the characteristics of polymers are explained on the basis of this Newtonian equations, and there is graph also plotted from the general expressions through tau is equal to a gamma power e into b, log tau equal to log a plus b log gamma star. On the basis of this we can very easily counted the slope b and intercept log a. That's all.